Greetings students, how are you? I hope all you are well. Beta, as you know, we have started our chapter, we have completed our second chapter, that is data representation. Let us a quick revision of this chapter. Firstly, in this chapter, what we learn, firstly, what is data representation, then बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम एंड देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर सिस्टम्स. Then conversion between different number systems mean binary to octal, binary to decimal and binary to hexadecimal, about conversion between different number system. Then understand internal storage encoding of character like ASCII, ISCII and Unicode. Next, firstly, what is data representation? It refers to the internal method used to represent various types of data stored on a computer. Computer uses different types of numeric codes to represent various forms of data such as text, number, graphics and sounds. Beta, as you know, computer dealing with the quantities like measured, monitor, record, manipulated arithmetically, observation, and in the digital systems the quantities are represented by symbol called digit. किससे represent करते हैं? Digits. Okay, and many number systems, so many number systems we are used like decimal, binary, octal and hexadecimal. So let's talk about what is number system. Number system is a way to represent numbers. In digital representation, as I am saying that in digital system like computer, quantities are represented by symbols called digits. So in digital representation, various number systems are there like decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. Firstly, what is decimal number system? Decimal number systems is composed with 10 numbers, so that it's called base 10 system, composed of 10 numbers or symbols, and these 10 symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The decimal number system is a positional value system in which the value of the digit depends on its position. इसकी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी. ओके, the various position relative to decimal point carry weights that can be expressed as power of 10. See, this is the positional values in decimal numbers. आपके पास ये एग्जाम्पल है बेटा 2567.125. How we represent decimal numbers, how we present positional value in the decimal numbers. Beta, these are the बिट्स. मेमोरीज में कैसे बिट हुई? 2, 5, 6, 7 देन डेसिमल पॉइंट 1, 2, 5. एज यू नो कि डेसिमल जो डिजिट है वो एक बिट को स्टोर करता है. तो इन द डेसिमल नंबर सिस्टम इसकी बेस क्या है? 10. इसकी बेस क्या है? 10. तो हाउ वी प्रेजेंट इट? फ्रॉम द डेसिमल नंबर सिस्टम, लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल वी आर स्टार्टिंग द पावर्स 0, 1, 2, 3 मीन्स 10 रेज टू पावर 0. अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है 10 रेज टू पावर 0 क्योंकि इसका बेस क्या है 10 एंड सिम्बल्स आर 0 to 9. देन इंक्रीजिंग 10, 1, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2 एंड 10 रेज टू पावर 3. एंड द राइट साइड start from -1, -2 and -3. These are the positional value. And this is the MSD and LSD. Now what is MSD? MSD is the most significant digit and LSD least significant digit. Okay, this is the positional value in decimal system. Now what is binary number system? Its base is 2 because in the binary there are two numbers, that is 0 and 1, so that its base is 2. And there are only two symbols, that are 0 and 1, and it has also a positional value system.
एंड बेटा बेस 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। एक और चीज़ आती है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उसमें 2 ही थिंग्स होती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ऑन ऑफ। इन कंप्यूटर भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ऑपरेट होता है। तो दैट्स इज देयर आर 2 डिजिट दैट्स आर 0 एंड 1. नाउ व्हाट इज द पोजिशनल वैल्यू इन द बाइनरी नंबर्स? एज यू नो कि इट्स हैज ओन 2 numbers so that we are expressed as a power of 2. हमने डेसिमल में क्या किया था, उसकी बेस 10 थी तो 10 की पावर को रिप्रेजेंट किया था, और अगर बाइनरी है इसको हम क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो 2 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे. ओके, प्लेसेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ बाइनरी पॉइंट, दिस इज बाइनरी पॉइंट, दिस इज द लेफ्ट साइड, आर पॉजिटिव पावर ऑफ 2 and places to right are negative power of 2, same in the like decimal number. Next is octal number system. Its base is 8 because it has 8 unique symbols 0 to 7. The sequence of octal number systems are 0 1 2 3 4 5 6 7. 8 नहीं आएगा क्योंकि इट्स रिप्रेजेंट ओनली 0 to 7 नंबर. उसकी नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी. सपोज इसको 0 0 0 1 0 2 अप टू 0 7, फिर 1 0 1 1 like this. Okay, this is the sequence. Each successive number after 7 is a combination of 2 or more unique symbols of a octal system. Next, positional value in octal number. As you know, it has its base is 8, so we expressed as a power of 8. Same left side positive values and right side negative values. Same binary and same octal. बाइनरी में था हमारे 2 पावर में, और डेसिमल में है 10 की पावर, ऑक्टल में है 8 की पावर. नाउ हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल बेस इज 16 so that it has 16 possible digit symbols, but here it uses 0 to 9 digit यानी कि 10 हो गए, then A to F, these 5 digit are represent 16 digit symbol 0 to 9 and A to F. ओके, सपोज अगर आपका एक है डेसिमल नंबर 10 है, डेसिमल नंबर 10 है, दैट इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B, 12 इज इक्वल टू C, 13 इज इक्वल टू D, 14 इज इक्वल टू E एंड 15 इज इक्वल टू F. सिंपल 0 to 9 तो आपके सिम्बल्स हैं, डिजिट्स होंगे. देन अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स. गॉट इट? A represent 10, B represent 11, C represent 12, D represent 13, E represent 14 and F represent 15. Got it? Now its positional value same, it expressed as a power of 16, same like the decimal, octal, binary, and decimal में 16 raised to power होगा. Okay बेटा. Next is number conversion. How we convert numbers from one base to another. Like decimal to binary कैसे करेंगे, binary to decimal, these. Okay, let's see. फर्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन. अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर बेस 10 यानी कि 0 to 9, अगर इसमें से कोई रिप्रेजेंट नंबर है, सपोज ये है 2541, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 2 में. देन व्हाट वी डू, द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 until you get 0 and its remainder recorded. हम डिवाइड करते जाएंगे उस नंबर को 2 से, कब तक करेंगे, जब तक हमें क्वोशंट एज अ क्वोशंट 0 ना मिल जाए, और हम इसके साथ क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे. द फाइनरी बाइनरी रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय असेंबलिंग ऑल द रिमाइंडर्स विद द लास्ट रिमाइंडर बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीस्ट. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीस्ट है, जो नीचे नंबर होगा, उससे हम उसको स्टार्ट करेंगे. हाउ, लेट्स सी. सपोज वी आर हैविंग 266 नंबर, 266 डिवाइडेड बाय 2, क्वोशंट इज 133 एंड रिमाइंडर क्या आएगा, 1 या 0, 0 आएगा. यस, सो वी हैव रिकॉर्डेड 0 नंबर. ओके, देन 133 को अगेन से 2 से करो. देखो 266 है, हमने इसको डिवाइड किया 2 से, 133, रिमाइंडर इज 0. 2 से डिवाइड किया
2 6 ज़ा 12 and 2 yes 7 ज़ा और 2 6 ज़ा 12 yes 1 remainder 2 33 66 0 remainder 2 16 ज़ा 32 1 remainder 2 8 ज़ा 6 0 remainder 2 4 ज़ा 0 0 remainder 2 2 ज़ा 4 then 0 remainder 2 1 ज़ा 0 0 remainder okay and 2 0 ज़ा 1 0 got. now start from down side. क्या रिमाइंडर है 1 0. अगर हम इसको भी लेके चले 2 0 ज़ा 0. आप यहाँ तक भी कर सकते हैं. सॉरी हमने किया 2 0 ज़ा 1 तो रिमाइंडर क्या रह गया 1. आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 1 0. दिस इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 266 डेसिमल टू बाइनरी ओके. और अगर हम यहाँ ज़ीरो नहीं लिखते तो जो कम नंबर आया है मीन्स हमने 2 से डिवाइड करें, अगर 2 से कम आ जाए सपोज 1 इज़ लेस देन फ्रॉम द 2 तो देन वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 0 0 0 0 1 0 1 0 okay. This is the binary conversion of the decimal number. Now how we can convert fraction from decimal to binary. suppose अगर आपके पास 5.35 नंबर है, how we can convert. अगर 5 है वो तो मैंने बता दिया कि हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 2 से. 2 2 ज़ा 4 क्या आया 1 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 0 तो उसका क्या आ गया 1 0 1 पॉइंट. अब 35 है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 0. अगर हम 0.35 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्या आएगा 0.70. इस ज़ीरो को रिकॉर्ड करो ठीक है. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 मल्टीप्लाई 2 1.40 ठीक है. 1 को फिर से रिकॉर्ड किया. देन 0.40 मल्टीप्लाई 2 0.80 दैट इज़ 0. फिर 1.6 आ जाएगा. ये एज इट इज़ चलता रहेगा ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे यहीं से राइट करना स्टार्ट करेंगे. इसके रिमाइंडर्स आ गए, इनके हमने इंटीजर पार्ट्स को ले लिया. देन कहाँ से राइट करेंगे अप साइड से 0 1 0. उसमें हम डाउन साइड से करते हैं, इसमें अप साइड से करेंगे ओके बेटा. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. आपके पास बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 0 1. इसको हम कैसे करेंगे बाय समिंग टुगेदर. सम करेंगे द वेट्स ऑफ वेरियस पोजीशन इन द बाइनरी नंबर. जो हमने पोजिशनल वैल्यू में उनके वेट्स देखे हैं उससे अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे सम करेंगे. हाउ बेटा देखो आपके पास नंबर 1 0 0 1 0 1 ओके. 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4 and 2 रेज़ टू पावर 5. now what we do 1 multiply 2 raised to power 5 1 multiply 2 raised to power 5 then plus 0 multiply 2 raised to power 4 then plus 0 multiply 2 raised to power 3 like this okay. ये आपके पास and then sum it and that's equivalent to 37. next is how can we convert its fractional part. आपने देखा कि 1 0 0 है तो इसको हमने क्या किया 1 0 0 डॉट 1 1 0 1. एज यू नो स्टूडेंट्स इधर हमारे नेगेटिव पावर्स जाएंगी एंड दिस साइड पॉजिटिव पावर. 2 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर -1 2 रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर -3 एंड 2 रेज़ टू पावर -4. देन आपके पास आ गया. अब क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे. नाउ कैलकुलेट दिस टर्म्स एंड यू गेट 4.8125. बेटा इसका बेस 2 है एंड इसका बेस 10 है बिकॉज दिस इज अ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. ऑक्टल है तो इसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे. 123 है आपके पास 8 से डिवाइड किया 15 इज क्वेश्चन एंड 3 इज रिमाइंडर. देन 8 1 ज़ा
8, 7 इज रिमाइंडर, 1 आ गया तो आपके पास क्या नंबर आएगा 173, दैट इज इक्वल टू 123 डेसिमल इज इक्वल टू 173 बेस इज ऑक्टल। ऑक्टल टू डेसिमल क्या करेंगे, सेम इसके पावर्स लेके चलेंगे, इसमें 8 रेज टू पावर 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 8 रेज टू मल्टीप्लाई 2 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 0, वही उसकी पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू लर्न अ वन टेबल दैट इज equal to octal digit to binary equivalent. As you know student, octal digit has 3-bit binary equivalent. That's why 0 is equal to 3 times 0, 1 is equal to 001, 2 is equal to 010, 3 is equal to 011, 4 is equal to 100, 5 is equal to 101, 6 is equal to 110, 7 is equal to 111. And you can learn like this 4 2 1. अगर 0 नहीं है तो 3 टाइम्स 0, 1 यहाँ से बना तो 1, पुट द 0 इन द प्लेस ऑफ 4 and 2, पुट द 1 एज अ प्लेस ऑफ 2 and अदर 0, 3 is combined with these two numbers, then put 1 1 and here 0. Okay, like this. Got it? Now how we can convert octal to binary? 472, 4 is equal to 100, write it, 7 is equal to 111, write it, then 2 is equal to 010, write it, and same process applies equal on the fraction. फ्रैक्शन पार्ट भी है, उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ओके बेटा, ऑक्टल टू बाइनरी। नाउ बाइनरी टू ऑक्टल, आपके पास क्या है, ऑक्टल है, नंबर आया आपके पास, सॉरी बाइनरी नंबर आया, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड, और जो फ्रैक्शन की साइड है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाउ वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, 1 1 1 1 ग्रुप, 0 0 1 1 ग्रुप, 0 1 0 0 1 0 1 ग्रुप, और इस साइड से हम इधर चलेंगे। ओके, नाउ 1 1 1 इज इक्वल टू 7, 1 0 0 इज इक्वल टू 5, 0 1 0 इज इक्वल टू 2, 1 0 0 is equal to 4, 0 1 1 is equal to 3. So that beta you have to learn this table. Okay. Now decimal to hexadecimal conversion by repeated division with the 16. 16 से divide करेंगे, remainder record करेंगे, and from the downside to upward we are doing we are writing the remainder. This number divide किया, this is remainder, 6 डिवाइड किया 15, 15 इज इक्वल टू f एंड देन 0 9, तो क्या आ गया 9f1। ओके बेटा, नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, सेम उसकी पोजिशनल वैल्यूज निकालो एंड देन मल्टीप्लाई एंड देन सम। बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास 4 बिट डिजिट का होता है इसमें, तो दिस इज द टेबल। 0 इज इक्वलेंट टू 4 टाइम्स 0, 1 इज इक्वलेंट टू 0 0 0 1, इसमें हम लेके चलते हैं 8 4 2 1, और ऑक्टल में 4 2 1। दिस इज द टेबल, लर्न इट बेटा। ओके, दिस इज द टेबल, लर्न इट, कि 0 के लिए 4 टाइम्स 0, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 इज इक्वलेंट टू 0 1 0 0, 5 इज इक्वलेंट टू 0 1 0 1, 6 is equivalent to 0 1 1 0, 7 is equivalent to 0 1 1 1, 8 1 0 0 0, 9 10 11 12 13 14 15, but 10 is equal to a and a is equal to 1 0 1 0. Okay beta, you have to learn this table. Now how we can convert binary to hexadecimal? Beta, in the octal you are making the group 3 3, but in the binary we are making the groups of 4 digit. From decimal to if we start from the decimal and we are going to the left side, make the group 4, then यहाँ 3 रह गया, तो what we do, put 0. Okay, same from this side, 0 0 1 0 1 group, here only 1 is left, so put the
30. ओके, पुट द 30. तो इनका अब आप राइट कीजिए, ये किसके इक्विवेलेंट है? ओके, देखो 1101 किसके इक्विवेलेंट है बेटा? 1011 1011 इज इक्विवेलेंट टू बी. ओके, गॉट इट ना बेटा? ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम 8421 करके देखें, यहीं से देख लो, 8 4 कितना हो गया? 12 एंड 1 13. 13 इज इक्विवेलेंट टू ए आपके 10 है, बी सी डी ई 11 12 13, तो ये क्या आ गया? डी. ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 2 के डॉट 2, दिस इज इक्विवेलेंट टू 8. तो आंसर इज डी बी डॉट और डेसिमल पॉइंट 28 is equal to hexadecimal. Okay, now how to convert hexa to binary? वही जो नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट राइट करो. 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है आपके पास? 011. ए का है 1010. बी इज इक्वल टू 1011. 2 इज इक्वल टू 0010. दिस इज द हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन. नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर. बेटा अभी मैंने ऑक्टल में बताया था कि जैसे आपके 0 to 7 नंबर है तो इन्हीं डिजिट से सीक्वेंस बनेगी. ओके, इन द सेम वे अगर आपके पास बाइनरी नंबर्स है तो बाइनरी नंबर्स ओनली 2 नंबर्स आर देयर, 0 और 1. ओके, अगर आपके पास कितने डिजिट, अगर सिर्फ एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? वन वे ही हो सकता है, आइदर वी कैन राइट 0 और वी कैन राइट 1. इफ वी आर हैविंग 2 डिजिट तो 2 डिजिट हैं, कितने में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 वेज में. 2 डिजिट इज रिप्रेजेंट टू 2 वेज, 0 1 या 0 1 लिख सकते हैं या 1 0 लिख सकते हैं. ओके, सॉरी बेटा, अगर आपके पास 1 डिजिट है तो वी कैन रिप्रेजेंट इन 2 वेज, क्योंकि 2 raised to power 1. इफ वी आर हैविंग 2 डिजिट वी रिप्रेजेंट बाय 4. 1 डिजिट में आइदर 0 और 1. अगर आपके पास 4 हैं, सॉरी 2 डिजिट हैं, यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. और वी कैन राइट 0 1 है आपके पास, इनके साथ या तो 0 आ सकती है और 0 1 है 1 भी आ सकती है. तो इनसे क्या बना? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. 4 वेज हो गए राइट करने के. नेक्स्ट, इफ वी आर हैविंग 3 डिजिट तो देन is equal to 8. 2 raised to power 3 is equal to 8. So we are having the 8 ways to have 3 digit. How बेटा? आपने यहाँ तो 4 डिजिट वाली ले लो पहले, ये 4 डिजिट की है, इनके साथ पहले 0 लगा के देखो क्या बन जाएगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. देन नेक्स्ट में 1 लगा दो, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर. अगर आपके पास 4 डिजिट है तो वी आर हैविंग द 16 डिजिट. अब वही सेम करेंगे, ये आपके 3 डिजिट हैं, पहले इनके साथ 0 लगाओ, देन 1 लगाइए, पहले 0 के साथ ऐड कर दो, फिर 1 के साथ ऐड कर दो. दैट इज इक्वल टू योर 16 वेज ऑफ टू हैव द 4 डिजिट. ओके बेटा, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम. दिस इज द लिस्ट बेटा. if you are having 0 decimal number तो binary is equivalent to 0 0 0 0 and octal is this, hexadecimal is this. ठीक है बेटा, डेसिमल नंबर्स हैं उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर सकते हैं, राइट बेटा? तो सो जस्ट गो थ्रू आउट दिस टेबल. नेक्स्ट इज बाइनरी एडिशन. बेटा इन द मैथ्स वी आर एडिंग द डिजिट्स. अगर हमारे पास 27 + 15 है तो व्हाट वी डू? 7 + 5 12 एंड 1 इज कैरी. ओके, 1 is carry, then 2 1 3. The answer is 32. Now the question is how we can add binary numbers. Binary numbers कैसे होते हैं? 1 0 1 0 0 1 0 1 like this. How can we add? There are 5 basic cases बेटा. Case 1,
If we are adding two zero number, the result is 0. If we are adding 0 and 1, the answer is 1. If we are adding 1 and 0, answer is 1. If we are adding 1 and 1, 1 or 1, 2 is equivalent to binary addition 10, 0 and 1. ये 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में भी. ओके, अगर नंबर होगा. Then 1 1 1 double 1, and this one is going to the carry. Let's take the example. We are going to add these two numbers 0 1 1 1 1 1 0 0. कॉलम वाइज ही करेंगे बेटा. पहले 0 1 को ऐड किया, देन आंसर इज 1. कोई कॉलम कैरी नहीं गया. देन 1 and 1, नेक्स्ट में चलो 1 and 1 0, कैरी इज 1. ओके, 3 times 1 है तो क्या आएगा? डबल 1. 1 कैरी, 1 0 0 1. द आंसर इज 1 1 0 1. दोबारा से देखिए बेटा. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 प्लस 1 1 1 and 1 10 आया. 0 इधर आएगा एंड 1 कैरी. अगर 3 टाइम 1 है तो 1 1 आएगा. ओके, 1 0 1 1 0 1. द आंसर इज 1 1 0 1. So this is the binary addition example. Now beta, these about the number system and how we can convert from one base to the another number system. Next question is character string representation. Beta, as you know कि what we press in the computer, कुछ भी प्रेस करते हैं कंप्यूटर में थ्रू अ कीबोर्ड, तो आपके पास आता होगा ना माइंड में कि हाउ अ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज विच नंबर, लेटर, सिंबल इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, राइट? तो सो दिस इज पॉसिबल थ्रू एन एनकोडिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज एनकोडिंग सिस्टम? एनकोडिंग सिस्टम इज अ predefined set of codes for each recognized letter, number or symbols. But यहाँ F है, off. Okay, when a key is pressed on the keyboard then send the code for that key from the encoding schemes. Then computer looks for the received code in the encoding scheme and gets the number, letter, symbol pressed. क्या कह रहा है कि अगर हम जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड क्या करता है? एक कोड सेंड करता है जो भी हम की प्रेस करेंगे थ्रू अ एनकोडिंग स्कीम. जो एनकोड उसका करेक्टर होगा, जैसे कैपिटल ए है दैट इज इक्वल टू 65, वो उसको कन्वर्ट करेगा. इंटरनल वर्किंग चलती है, ठीक है. और ये कौन कितने हमारे पास एनकोडिंग स्कीम्स हैं? 3 हैं. ASCII, यूनिकोड एंड ISCII. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. फर्स्टली, व्हाट इज ASCII कोड? It is known as American Standard Code for Information Interchange, developed by American National Standard Institute. It is used alphanumeric encoding scheme which is used in computer to translate text into a form that can be understood by the computers, and it uses 7-bit for each character, so it has 128 possible code groups. It represents all of the standard keyboard character as well as the control function. कंट्रोल फंक्शन जैसे कौन से होते हैं जो हमारे वर्क कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, जैसे रिटर्न है, अनडू किया, लाइक दिस लाइन फीड. ओके, दिस इज द ASCII टेबल. लेट्स सी कि अगर हमारे पास 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नल. जो हमारे पास कुछ पंक्चुएशंस आती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लाइक M% है, इसका को के लिए क्या डेसिमल नंबर है? 38. हेक्साडेसिमल क्या है? 26. किस करेक्टर के लिए? M%. स्पेस के लिए क्या है? डेसिमल नंबर 32 एंड हेक्साडेसिमल 20. कैपिटल A इज इक्वल टू 65 डेसिमल. हेक्साडेसिमल क्या है इसका? 41. ओके, like this we are having from 0 to 127 encoding scheme of some computers keyboard keys. Okay, some computers keyboards key, some हम कह सकते हैं कंट्रोल फंक्शंस, सम पंक्चुएशन लाइक डॉट. ठीक है, जैसे हम लाइन राइट करते हैं पीछे डॉट लगाते हैं. ओके, नाउ next is ASCII code. ASCII, ISCII, ASCII code, that is Indian Script Code for Information Interchange.
In 1991, the Bureau of Indian Standard adopted the ISCII. बेटा जो ASCII कोड किया है हमने उसमें 0 to 128 हमारे पास करेक्टर्स हैं जो 7 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं. बट जो ISCII है ये हमारी इंडियन स्क्रिप्ट कोडिंग इंफॉर्मेशन है जो किस पे काम करती है, 8 बिट कोड पे. मीन्स इट हैज़ कैपेबल ऑफ कोडिंग 256 करेक्टर. ये ASCII कोड्स को भी तो रिटेन करती है, साथ में अपने भी देती है. ये किस लिए यूज़ होता है बेटा, जो ISCII है, फ्रॉम द नेम इंडियन स्क्रिप्ट कोड. इंडियन स्क्रिप्ट कोड मीन्स जो इंडियन की लैंग्वेज है, देयर आर 15 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनको भी क्या करती है, चेंज करती है. उनके हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स देती है. लाइक बेटा अगर हम देवनागरी ISCII स्क्रिप्ट लेते हैं, क के लिए KA, ख KHA. बेटा हाउ कैन वी राइट, आपने देखा होगा कि हम वर्ड में जब काम करते हैं, MS वर्ड में आपने देखा होगा इंग्लिश के लिए हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, एरियल है, कैलेबर है, टाइम्स न्यू रोमन. ओके, इफ़ वी आर राइट हिंदी in the document, then we use some special fonts like Devanagari and Kundali, okay, so that we can translate the English word to the Hindi. And some likes Gujarati ISCII script, वो उनको इस टाइप में रिवर्स करती है. ओके बेटा, these are the ISCII कोड, दैट इज़ इंडियन स्क्रिप्ट लैंग्वेज. ये ASCII करेक्टर्स के साथ साथ अपने कुछ स्पेशल करेक्टर देती है जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज करती है. अगर आपने एक कंप्यूटर में राइट किया है तो आप उसको अगर दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हो तो उसके लिए भी वो क्या होगी, पोर्टेबल होगी. उसके लिए आपको क्या चाहिए, यूनिक कोड, यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड. मीन्स अगर हम एक कंप्यूटर में राइट करके अगर दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग जैसे हमने राइट किया वो एज इट इज़ रहे, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिक कोड, दैट इज़ यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड. ओके, दिस encoding scheme represent different set of character belonging to different languages by assigning a number to each of the character. डिफरेंट लैंग्वेजेस को बिलोंग करता है और क्या असाइन करता है, नंबर to each of the character. It provides a unique code for all character in all languages of the world. It supports around 1 lakh character of languages around the world and it uses maximum of 4 bytes to represent each character. Got it? And it can be easily typed in all languages of the world on all computer platforms, program and the internet. Beta, I hope you understand about this. What is data representation and number conversion, decimal, octal, hexa and binary, how we can convert to each other, and then encoding scheme, ASCII, ISCII and Unicode. I hope you all got all the points beta. Revise it carefully and this is a very important chapter. Thank you.